हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे टेक्नो फंडा एनालिसिस ऑफ लॉरस लैब्स। जैसा कि आपको पता है, लॉरस लैब्स काफ़ी फेमस एक कंपनी है जो कि एपीआईज़ बनाती है और उसी के बारे में हम फंडामेंटली भी देखेंगे कंपनी कहाँ खड़ी है और उसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि कैसा इसका मैनेजमेंट है, किस तरह के कैश फ्लोज़ हैं, किस तरह का फाइनेंशियल स्टेटस है कंपनी का और किस तरह के प्रोडक्ट रेंज में ये लोग अवेलेबल हैं। So let's understand with the management. So Dr. Satyanarayana Chava जो है, he is a founder and CEO of this company. He has started off in 2007 by investing 60 crores of his own money. तो 60 करोड़ इन्होंने अपना पैसा लगाया है इस पूरे बिजनेस में एंड वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। He has around 23 years of work experience with different pharma companies like Ranbaxy Laboratories, Vera Laboratories, Warren Laboratories, and especially under the domains of research and development. So he is a pure R&D person. He was also the chief operating officer at Matrix Laboratories Limited, and from there he has started off his own firm in 2007. इसके अलावा he has been determined as inventor in 103 patents or patent applications filed across the world. So he is having a very strong grip on research and development. Let's understand the company's background. They work with all the top 10 generic pharmaceutical companies in the world. They sell their APIs in more than 56 countries. Their major focus is into antiretroviral medicines, hepatitis C and oncology drugs. They have filed around 264 patents, जिनमें से they own around 130 patents. They have almost commercialized 60 plus products since their inception across 3 distinct business units: generic API, generic FDF. FDF is like finished dosage forms, and synthesis. So these are the 3 business lines they operate in. Let's quickly browse through their key milestones. So 2006 में इन्होंने एक सेटअप किया R&D का, उसके बाद 2007 में कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किए यूनिट 1 में। 2012 में दे हैव इन्वेस्टेड अराउंड 600 मिलियन बाय FIL कैपिटल मैनेजमेंट एंड प्रमोटर्स। तो 600 मिलियन इन्होंने अपना पैसा डाला 2012 में। 2013 में दे हैव क्रॉस 10 बिलियन ऑफ रेवेन्यूज़। 2014 में इन्वेस्टमेंट ऑफ 3000 मिलियन बाय वॉरबर्ग Pincus, incorporated first subsidiary in US, forged partnership with S-Pen for CRAMS. So 2014 was very important year for them. 2015 में इन्होंने commercial operation start की unit 3 में and forged partnership with Natco Pharma. 2016 में they have got listed on NSE and BSE, filed first ANDA for US market, acquired 100% stake in Shriram Labs Private Limited as well. 2017 में इन्होंने कमर्शियल ऑपरेशंस यूनिट 2 के स्टार्ट किए, कमर्शियल सप्लाईज फ्रॉम यूनिट 5 फॉर एसपेन वो भी स्टार्ट किया एंड इनकॉर्पोरेटेड सब्सिडरीज इन UK एंड USA. तो 2007 में इन्होंने कुछ अच्छे माइलस्टोन्स अचीव किए। 2018 में दे हैव क्रॉस्ड 20 बिलियन ऑफ रेवेन्यूज़। तो आप देखेंगे 2013 से 18 आते आते इन्होंने अपने रेवेन्यूज़ डबल कर लिए। कमिंस्ड कमर्शियल ऑपरेशंस फ्रॉम यूनिट 4, incorporated a subsidiary in Germany, commenced FDF supplies. और यहाँ पे इन्होंने FDF जो फिनिश डोजेज फॉर्म्स थे यहाँ पे इन्होंने 2018 में ही स्टार्ट किए हैं। तो कीप इट इन माइंड, जस्ट इनको 2 साल ही हुए हैं फिनिश डोजेज फॉर्म्स को स्टार्ट किए हुए, बिकॉज दे आर नोन फॉर देयर APIs प्रोडक्ट्स। 2019-20 में इन्होंने लॉरस सिंथेसिस प्राइवेट लिमिटेड एक बनाई कंपनी एंड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ एन API यूनिट इन वाइजैग, एक्वायर्ड S-Pen's South Africa subsidiary Laurus Generics SA Private Limited, entered into strategic partnership with Global Fund for 3.5 years. इसी के साथ इन्होंने Laurus Synthesis INC USA is merged with Laurus Generics INC USA. तो 2019-20 was a tremendous year for them again. बिजनेस स्नैपशॉट देखते हैं बिजनेस में क्या क्या करते हैं। Laurus Generics API इनका एक बिजनेस लाइन है जहाँ पे कि ये मैन्युफैक्चर एंड सेल करते हैं APIs के एंड एडवांस इंटरमीडिएट्स के। इनका लीडरशिप है इन वेरियस हाई वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम APIs विद साइजेबल ग्लोबल मार्केट शेयर। प्रोडक्ट जो ये लोग ऑफ़र करते हैं एंटी वायरल, एंटी डायबिटिक, कार्डियोवैस्कुलर, PPIs एंड ऑन्कोलॉजी। इसके अलावा अगर फाइलिंग्स देखते हैं तो कमर्शलाइज 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं ये लोग।
इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखते हैं तो 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनके पास। लॉरस जेनरिक्स एफ डी एफ इज़ व्हाट फिनिश डोजेज फॉर्म्स, जो कि इन्होंने 2018 में स्टार्ट किया था। वहाँ पर ये लोग डेवलप करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं सॉलिड फॉर्मुलेशंस फॉर LMIC, विच इज़ लो मिडिल इनकम कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन मार्केट्स। इनका बेस्ट चीज़ है कि ये इनका अपना API स्ट्रेंथ है, सो बैक्ड बाय इन हाउस API स्ट्रेंथ। एंड इसमें भी अगर प्रोडक्ट रेंज देखते हैं तो एंटी वायरल, एंटी डायबिटिक, CVs, PPIs, CNS विच इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं। लॉरस सिंथेसिस की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक ये यूनिट है जहाँ पर कि ये लोग ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं उनके बिहाफ पर। स्पेशली स्टीरॉइड्स एंड हार्मोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी। अगर ये आप बात करेंगे सेल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स फॉर यूज़ इन न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स में ये लोग इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करते हैं, ये सारे ही नंबर करोर्स में है। तो रेवेन्यू अगर आप YOY देखेंगे तो Q2 FY20 से लेके अभी Q2 FY21 में ऑलमोस्ट ये 60% का ग्रोथ दिखा चुका है। इसी तरह से एबिडा की बात करते हैं तो एबिडा भी 139 करोड़ से बढ़ के अभी 378 करोड़ हो चुका है। YOY 172% का ग्रोथ इसने शो किया है। मार्जिन्स भी आप देख सकते हैं काफ़ी स्टीडीली ग्रो कर रही है इस कंपनी की। पैट की बात करते हैं तो Q2 FY20 में इसके पास 57 करोड़ का पैट आ रहा था, जो कि अब 242 करोड़ का पैट इसने क्लॉक किया है Q2 FY21 में, विच इज़ अ फिनोमिनल नंबर। 325% का ग्रोथ इन्होंने YOY दिखाया है। EPS की भी बात करते हैं तो 309% का EPS जंप दिखाया है इसने इन लास्ट 1 ईयर। सेगमेंटल रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं तो Q2 FY21 में कंट्रीब्यूशन जो है वो जेनरिक API से 50% का आ रहा है, सिंथेसिस से 10% एंड जेनरिक फिनिश डोजेज फॉर्म से ऑलमोस्ट 40% का रेवेन्यू आ रहा है। अगर आप वैसे भी देखते हैं Q2 FY20 में 467 करोड़ जेनरिक API से आ रहा था, जो कि अब बढ़ के 571 करोड़ हो गया है। इसी तरह से जेनरिक FDF से 160 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि अब बढ़ के फिनोमिनली ग्रो किया है, 452 करोड़ हो गया है। एंड सिमिलरली सिंथेसिस में भी 85 करोड़ से ऑलमोस्ट 116 करोड़ हो गया है। जेनरिक API की बात करते हैं तो जेनरिक API में इनके पास 3 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, एंटी वायरल, ऑन्को एंड अदर्स। तो इसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन आता है, इनका कंट्रीब्यूशन आता है वो 66% एंटी वायरल ड्रग्स से आता है, ऑन्को से 15% एंड 19% अदर्स कंट्रीब्यूट करते हैं जेनरिक API डिवीज़न में। एंटी वायरल API रेवेन्यू जो है उसने 20% का YOY ग्रोथ दिखाया है। ऑन्को API का रेवेन्यू जो है वो 43% YOY ग्रो कर रहा है एंड अदर API जो है वो भी काफ़ी अच्छे से 18% से ग्रो किया है इन्होंने। लेट्स टॉक अबाउट द जेनरिक FDF डिवीज़न। जेनरिक FDF जो डिवीज़न है वहाँ पे रेवेन्यू शोकेस्ड रोबस्ट ग्रोथ ऑफ 183% YOY, जहाँ पर कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मार्केट जो है वहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया TLE 400 इन द LMIC मार्केट, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़। नॉर्थ अमेरिका में इन्होंने जो है सेल्स जो ड्राइव हुई उससे इंक्रीज़ वॉल्यूम से हुई एंड लॉन्च इन्होंने किया TLE 400 एंड TLE 600 इन US। इसके अलावा यूरोप में भी दे हैव एंटर्ड इनटू लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद द लीडिंग जेनरिक प्लेयर इन यूरोपियन यूनियन फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़, जो इनका बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। 2 प्रोडक्ट्स मार्केटेड यूजिंग ओन फ्रंट एंड, तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपना FDF डिवीज़न को बढ़ा रहे हैं ये लोग। अगर हम इसी तरह से सिंथेसिस डिवीज़न की बात करें, CDMO इज़ नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग दूसरी कंपनीज़ के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लेके उनके लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम सिंथेसिस डिवीज़न showed a growth of 36% YOY. Total number of active projects in the CDMO division stood at 49 as of Q2 FY21. एंड इसके अलावा अगर आप बात करते हैं वर्किंग विद लार्ज ग्लोबल इनोवेटिव फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, मिड एंड स्मॉल बायोटेक कंपनीज़, इस तरह की इनके पास पकड़ है। और जो कमर्शियल सप्लाईज़ जो हैं ऑनगोइंग है अभी फॉर 4 प्रोडक्ट्स इनके पास, तो कमर्शियल लेवल तक 4 प्रोडक्ट्स इनके पहुंच चुके हैं। 5 साल का जो हम डिवीज़न वाइज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखते हैं वो उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, क्योंकि अगर 2016 में अगर आप देखेंगे तो दे वर हेविली डिपेंडेंट ऑन एंटी वायरल APIs ओनली, बिकॉज 82% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम API, एंटी वायरल API, एंड देन ऑनको से 8% एंड देन
अदर एपीआई से 3% एंड कस्टम सिंथेसिस से 7%। ये धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो एंटी वायरल एपीआई जो है उसका कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है, बट बाकी चीज़ों का बढ़ता जा रहा है, जिसमें से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो 2019 में इन्होंने शुरू किया जेनरिक एफडीएफ विच कंट्रीब्यूट अराउंड 2%, वो बढ़ के अभी 38% हो चुका है। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने अभी अपने को डाइवर्सिफाई कर लिया है। 34% एंटी वायरल एपीआई, 38% generic FDF, and then rest is like onco and other API and custom synthesis, which is a very good thing. आउटलुक देखते हैं FY21 और से आगे का कैसा आउटलुक दिखता है। तो इनका हेल्दी रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखती है बिकॉज इनका काफ़ी रोबस्ट ऑर्डर बुक है। तो इन्होंने जो है पार्टनरशिप किया कुछ ग्लोबल फंड्स के साथ, which basically offered them higher volume contracts with reasonable predictability in FDF tender business। FDF जो है जनरली फॉर्मुलेशन जो फिनिश्ड डोजेज फॉर्मुलेशन जो बिज़नेस है इनका, वो टेंडर बिज़नेस बोला जाता है उसको, क्योंकि टेंडर के थ्रू ही वो आगे चीज़ें चलती हैं और वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनके पास। हैव अ हेल्दी ऑर्डर बुक फॉर FY21। CDMO बिज़नेस भी इनका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने यूरोपियन यूनियन में किया है, उससे काफ़ी अच्छा है इनके पास आ रहा है। रोबस्ट ग्रोथ है अदर API सेगमेंट में भी इनके पास, काफ़ी सारे नए कस्टमर्स ऐड हुए हैं इनके। अब हम देखते हैं चेंजिंग बिजनेस मिक्स टू ड्राइव ग्रोथ। जो चेंजिंग बिजनेस मिक्स है, जेनरिक FDF सेगमेंट कंट्रीब्यूटेड 30% इन H1 FY21 टू टोटल रेवेन्यू एज अगेंस्ट 2% इन FY19, जो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी अच्छे से अपने बिजनेस मिक्स को कर पा रहे हैं ये लोग। एंड नॉन ARV API बिजनेस टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली शोकेसिंग द स्पीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू। ऑन ARV API बिजनेस भी कंट्रीब्यूट अच्छे से कर पा रहा है। चेंज इन रेवेन्यू एंड प्रोडक्ट मिक्स टू जनरेट बेटर प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी इनके पास अच्छी चीज़ें ये लोग करते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। प्रोडक्ट मिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर नॉट हेविली डिपेंडेंट ऑन वन प्रोडक्ट ओनली। कैपेसिटी ऑगमेंटेशन भी कर रहे हैं ये लोग, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं अमंग टॉप 5 इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिएक्टर कैपेसिटीज़। तो टॉप 5 कंपनीज में काउंट होता है। ऑल द ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन हैव टर्न्ड कैश पॉजिटिव इन FY20। जितना भी इन्होंने ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन किया था वो सभी अपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। इसके अलावा ब्राउनफील्ड कैपेक्स जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी चल रहा है और वो चलता रहेगा। इन एडिशन फॉर कैपेसिटी एडिशन इन लाइन विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, क्योंकि ऑर्डर बुक ज़्यादा है इनके पास, अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, तो इनको कैपेसिटी एक्सपेंशन करना पड़ेगा और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन चलता रहेगा। डबल कर देंगे ये लोग FDF कैपेसिटी बाय FY22। इन्होंने कुछ ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी किया है, इनिशिएट किया है फॉर ऑल द डिविजन्स API FDF एंड सिंथेसिस। तो काफ़ी अच्छे से ये लोग कैपेक्स भी कर रहे हैं ऑन बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ डिमांड इन द मार्केट। क्विक चेक करते हैं फंडामेंटल नंबर्स पे। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 15,297 करोड़ का है। करंट प्राइस आज 285 रुपये पे बंद हुआ है। हाई लो देखते हैं तो 345 से थोड़ा सा ऑफ हाई आया है ये। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं तो 25.6 है, जो कि इंडस्ट्री का PE के बराबर ही है, तो नॉट वेरी प्राइसी। एंड बुक वैल्यू देखते हैं तो 40.8, तो प्राइस टू बुक हो गया 6.99 टाइम्स, विच इज़ अ डिसेंट नंबर। डिविडेंड यील्ड कुछ बहुत ग्रेट नहीं है बिकॉज इट इज़ अ ग्रोथ स्टोरी। ROCE काफ़ी अच्छी है 14.2%, ROE भी अच्छी है 15.4%। प्रोमोटर की होल्डिंग 32.1% है। और अगर आप इसकी प्लेज परसेंटेज देखते हैं तो यहाँ पर ये रेड फ्लैग है, जहाँ पर कि इनकी प्लेज्ड भी परसेंटेज 16.4% इनकी होल्डिंग प्लेज्ड है। डेट टू इक्विटी काफ़ी अंडर कंट्रोल है 0.43 टाइम्स, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 11.6 टाइम्स है, विच इज़ अ गुड डिसेंट नंबर। रिजर्व्स भी इनके पास काफ़ी ठीक ठाक हैं, 2000 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व्स है इनके पास। क्विकली हम इनके कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं। तो नेट सेल्स आप देख सकते हैं जून 2018 में 540 करोड़ था, तो वो बढ़ के अभी 1139 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ दिखा रहे हैं और कंसिस्टेंट ग्रोथ है, आप ये देख सकते हैं। इसी तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप देखते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो 374 हो गया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। और इफ़ यू कंपेयर इट विद YOY also, there also you can see a robust jump in operating profit। इसी तरह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी काफ़ी ज़बरदस्त जंप हुआ है। 22-23 करोड़ का जून 2018 में हुआ करता था, जो कि अब बढ़ के यही नंबर 314 करोड़ हो गया है। 314 करोड़
का ज़बरदस्त नंबर इन्होंने क्लॉक किया है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 16 करोड़ का ये 2018 जून में करते थे, जिसको अब बढ़ के ये 242 करोड़ हो गया है, तो बेहतरीन नंबर है इस कंपनी के। डाइल्यूटेड ईपीएस देखते हैं तो 1.55 था, जो कि अब हो गया है 4.5, और लास्ट क्वार्टर में 16.07 ईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस था, जो कि कम हुआ है 4.5 हो गया है अभी 4.5 रुपीज़। अगर हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो सेल्स 2014 में इन्होंने क्लॉक किया था 1160 करोड़, फिर 1327, 1778, 1905, 2056, 2292 और अभी 2832 करोड़ FY20 में। तो आप देख सकते हैं लास्ट 6 साल से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं सेल्स नंबर। और इसी तरह से अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट आप 97 करोड़ के बाद अगर आप देखते हैं 68 करोड़, 134, 190, 168, 93, 255, तो थोड़ा सा जिगजैग ज़रूर रही है इनकी जर्नी नेट प्रॉफिट में, बट फिर भी अभी मार्च 2020 में इन्होंने काफ़ी अच्छा 255 करोड़ का नेट प्रॉफिट क्लॉक किया है। अब अगर हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात करते हैं तो नॉन करंट एसेट्स जो हैं, एसेट्स इनके पास कुछ 3676 करोड़ के हैं, जिसमें से नॉन करंट एसेट्स अगर आप देखते हैं तो 1938 करोड़, करंट एसेट्स जो हैं अभी 1812 करोड़ के खड़े हैं। करंट लाइबिलिटीज़ अगर आप देखते हैं तो 1692 करोड़ की करंट लाइबिलिटीज़ इनके पास है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 214 करोड़ की है। 1770 करोड़ का शेयर होल्डर्स फंड इनके पास अभी पड़ा हुआ है। अब हम क्विकली इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं तो 347 करोड़ का ये कैश जनरेट कर पा रहे हैं विद द ऑपरेशंस। इन्वेस्टिंग अभी ये 221 करोड़ की कर रहे हैं, बिकॉज अपने ये काफ़ी केपेक्स में पैसा लगा रहे हैं। तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हैं तो इनका जो डेट वाला पोर्शन है या फिर ये जो अपनी कंपनी में फाइनेंसेस जो डाल रहे हैं, वहाँ पे ये 128 करोड़ का ये लोग अपना पैसा जा रहा है इनके पास। नेट कैश फ्लो की बात करते हैं तो -1.37 करोड़, एंड नेट कैपेक्स जो है उनके पास 238 करोड़ का कैपेक्स अभी भी एस्टिमेटेड है इनके पास। और फ्री कैश फ्लोज तो अभी 110 करोड़ ये लोग जनरेट कर रहा है इन्होंने मार्च 2020 में, विच इज़ अ गुड थिंग। तो फ्री कैश फ्लोज इनके पास अभी तक हैं, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। क्विकली रेशियोज़ देखते हैं इनके। जो लिक्विड असेट्स हैं, लिक्विड असेट्स इनके पास काफ़ी ठीक ठाक है, 907 करोड़ अभी है इनके पास। करंट लाइबिलिटीज़ देखते हैं तो 1424 करोड़ था लास्ट ईयर, जो कि अब बढ़ के 1692 करोड़ हो गया है। करंट रेशियो जो है विच इज़ अगेन अ डिसेंट नंबर, 1 से 1 या 1.5 के बीच में अगर कुछ होता है तो अच्छा नंबर, 1 के ऊपर मैं अच्छा मानता हूँ इसको। करंट रेशियो इज़ नथिंग बट करंट असेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़, तो ये करंट रेशियो 1.07 इज़ ए गुड नंबर, क्योंकि इनके पास एसेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है इन लोगों ने, 3.06, 1.66 और अभी जाके 4.28, और अभी इस क्वार्टर में तो इन्होंने कुछ 16% के आसपास हो गया है। असेट टर्नओवर रेशियो जो है वो अगर आप देखेंगे तो वो अभी 0.77 टाइम्स है। एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? बेसिकली एसेट टर्नओवर रेशियो कि हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज़ डिप्लॉइंग देयर एसेट्स टू प्रोड्यूस देयर रेवेन्यू। तो ये एसेट टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही एफिशिएंटली कंपनी अपना एसेट्स को डिप्लॉय कर पाएंगे टू जनरेट रेवेन्यूज़। सो कैश कन्वर्जन साइकिल भी अगेन आप देखते हैं तो ये भी एक मैट्रिक्स है जिसमें कि आपको ये पता चलता है कि कोई भी कंपनी किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको किस तरह से अपना कैश में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लेती है। तो जितना ये ज़्यादा होगा उतना ये पुअर होगा कंपनी के लिए, और ये इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम किया है, 130 से 119 कर लिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। इसी तरह से डेट टू इक्विटी देखते हैं तो 1.51% था, जो कि अब कम होके 0.6% रह गया, विच इज़ अगेन इन्होंने थोड़ा सा डेट को कम किया है। सो फ्री कैश फ्लोज पर सेल्स जो परसेंटेज है, ये बेसिकली ये रेशियो हमें इंडिकेट करता है कि हाउ मच ऑफ अ कंपनीज रेवेन्यू इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैश। तो रेवेन्यू जनरेट तो कर लिया बट कैश में कितना कन्वर्ट किया वो एक चीज़ है। एंड 5% से ज़्यादा जो फ्री कैश फ्लोज पर सेल्स जो नंबर है, 5 से ऊपर काफ़ी अच्छा होता है, 5 के नीचे डिसेंट है। बट अभी अगर आप देख सकते हैं कि 3.87% का इन्होंने फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है, जो ट्रांसफॉर्म किया है रेवेन्यू को
फ्री कैश फ्लोज़ में, तो विच इज़ लाइक ओके नंबर। 5 से ज़्यादा होता तो बहुत खुश होता मैं इस नंबर को देख के। इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, और अभी इन्होंने 20.15% इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स दी। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी इनकी 9% है। ROCE काफ़ी अच्छे से 19.31% है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी ठीक है, 6.94% है। प्राइस टू अर्निंग देखते हैं तो 13.51 है अभी आज की तारीख में। प्राइस टू बुक 1.95 टाइम्स है। मार्च 2020 का मैं आपको ये डेटा दिखा रहा हूँ, क्विक रेशियोज जो दिखा रहा हूँ, तो आप वो थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा उन चीज़ों को देखते हुए। ये मैं थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि मैंने ब्लूमबर्ग से, जैसे मैंने दिखा रखा है सोर्स ब्लूमबर्ग, तो EPS एस्टीमेट चेंज बिफोर Q2 वर्सेस पोस्ट Q2 रिजल्ट्स। तो आप अगर देखेंगे जितनी भी APIs और क्रैम्स कंपनीज़ हैं, बिफोर Q2 रिजल्ट्स में FY21, FY22 एस्टीमेटेड, FY23 एस्टीमेटेड नंबर्स अगर आप देखते हैं EPS का स्पेशली, तो डिवीज़ लैब का 68 था, इस तरह से लॉरस लैब का 11 था, स्ट्राइड्स फार्मा का 30। और ये जो नंबर्स हैं, अगर आप करंटली जो एस्टीमेट्स आए हैं वो अगर आप देखते हैं तो FY21 का एस्टीमेट आप देखेंगे लॉरस लैब्स का 11 से सीधा हो गया है 16.2, जबकि FY22 एस्टीमेटेड अगर देखते हैं तो 12.2 से 16.8, 15.1 से सीधे 21। तो परसेंटेज चेंज भी आप देख सकते हैं, तो सबसे बेहतरीन जो है वो लॉरस लैब्स का ही है। 46.9% इसमें चेंज हो रहा है, और जो कि बहुत ही बेहतरीन नंबर है क्योंकि Q2 का बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। इसी तरह से आप बाकी भी कंपनीज़ का देख सकते हैं, इसी में आप समझेंगे कि सबसे आउट ऑफ द लॉट बेस्ट कंपनी है लॉरस लैब्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखते हैं तो प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग अभी की तारीख में सितंबर 2020 में 32.12% है। FIIs ने काफ़ी ज़बरदस्त चंक इसमें उठाया है, अगर आप देखते हैं 16% से सीधे 21% के आसपास हो गया है। DIIs ने थोड़ा सा लिक्विडेट किया है अपना परसेंटेज, और पब्लिक के पास इस टाइम पे 40.79% है। तो FIIs काफ़ी बुलिश हैं इस कंपनी पर। रिस्क भी समझते हैं थोड़ा सा इस कंपनी में क्या रिस्क हो सकते हैं। इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट्स कुड लीड टू प्रेशर ऑन मार्जिन्स इफ़ डेट इज़ नॉट रिड्यूस। तो डेट जो है अभी वो अगर रिड्यूस नहीं किया, और इंटरेस्ट रेट अभी क्योंकि बिल्कुल लोएस्ट रेट्स पर हैं, तो वो इतना प्रेशर नहीं आ रहा। जिस दिन ये बढ़ना शुरू होगा वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकता है। इस तरह से जिस तरह से ये केपेक्स करते जा रहे हैं, और अगर इनके प्रोडक्ट की डिमांड टेपर ऑफ हुई तो उस दिन इनके जो केपेक्स कॉस्ट है मे नॉट ट्रांसलेट इनटू प्रॉफिट्स, बिकॉज डिमांड इन सप्लाई का गेम है। इसके अलावा हु सक्सीड्स डॉक्टर छावा इन द फ्यूचर विल डिसाइड द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस कंपनी वेन एवर द टाइम कम्स फ्रॉम हिम टू स्टेप डाउन। तो हु सक्सीड्स डॉक्टर छावा इज़ अ बिग क्वेश्चन। अगर वो उसको ये लोग एक्नॉलेज कर लेते हैं और कोई सक्सेसर ये लोग ढूंढ लेते हैं, देन दिस रिस्क विल गो ऑफ। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं इस कंपनी के बारे में। तो आई टोल्ड यू इन all these possibilities and probabilities at what can be done in this company। अब मैं क्विकली आपको एक से टेक्निकल चार्ट पर भी लेके चलता हूँ, और वहीं पर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चल रहा है चार्ट पर। तो ये मैं डेली का लॉरस लैब्स का चार्ट लगाया है मैंने आपके सामने। इसमें मैंने एक, आपको ये दिख रहा होगा, मैंने एक ये लाइन यहाँ पर सेट की है, जो कि मैं इसको बोलता हूँ डबल बॉटम इसने फॉर्म किया है। अगर आप देखते हैं तो इसने 24 सितंबर 2020 को ये कुछ 250-51 के आसपास था, और फिर से इसने यही लेवल छुए ऑलमोस्ट 10 नवंबर 2020 को, फिर वहाँ से बाउंस बैक किया। तो यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर यहाँ से फिर से बाउंस बैक किया, और यहाँ पर एक आप और देख सकते हैं 10 नवंबर को इसने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बनाया है, और उसके बाद इसने ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल दिखाई, और वहाँ से ये चलना शुरू हुआ। तो इसको मैंने भी अभी लिया है, आज ही के दिन इसका मैंने शेयर ख़रीदे हैं 285 रुपये 50 पैसे पर। तो दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय दिस स्टॉक, बट दिस इज़ जस्ट एन एजुकेशनल चैनल, एजुकेशनल वीडियो। आप इसमें बिफोर यू टेक एनी पोजीशन इन दिस स्टॉक और एनी स्टॉक्स, देन यू शुड डिस्कस इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एज वेल। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसका RSI भी 48 के आसपास सेटल्ड है। तीसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, इसमें MACD पर जस्ट ये क्रॉसओवर्स, पॉजिटिव क्रॉसओवर्स आने शुरू हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा ही मेरे को ये स्टॉक लग रहा है, और अगर किसी को लॉन्ग टर्म में रखना है तो भी रख सकता है। अगर किसी को ट्रेडिंग करना है तो इस 325 350 आराम से जा सकता है, तो 20% का रिटर्न आराम से इसमें मिल सकता है। और इसके अलावा अगर आपको ये भी देखना है कि ये जो इसका 20 एंड
50 EMA जो इसका है लेवल्स, वो भी कन्वर्ज होके वो वहीं पर ही सपोर्ट अभी ले रहा है। तो बेस्ट प्लेस्ड है, आई थिंक दिस इज़ इट इज़ अ नो ब्रेनर, अभी आप ले सकते हैं। और स्लोली एंड स्टीडीली अगर और नीचे आता है तो ये विद स्टॉप लॉस, अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 250, ये आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर डालिए फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ नॉलेज शेयरिंग। एंड किसी ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो फटाफट डीमेट अकाउंट भी आप खुलवा लीजिए। उसके लिए मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ पे जाके आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर। एंड अगर आप उस लिंक के थ्रू अगर अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर ऑल दोज क्वेरीज। आई कैन see your portfolio, I can recommend, I can suggest a few good things, bad things about your portfolio as well, and I can help you restructuring your portfolio also. इसके अलावा अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है और आप करना चाहते हैं फ्यूचर में भी, तो मैं वो काफ़ी सारी चीज़ें रिकमेंड करता रहता हूँ अपने ट्विटर पर, जो कि आपको ये फ्लैश हो रहा होगा नीचे। एंड उसके अलावा टेलीग्राम भी एक चैनल है मेरा, उस पर भी मैं ये चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। So this is it. In case you like my videos, give me a thumbs up. If in case you haven't subscribed my channel, do it quickly, and we'll see you in the next video. Thank you so much for watching this video.